Welcome to CSS online classes. So this will be our third video in the series that is modern history MCQs. Uh, those have gone through my last two videos. They might have come to know that we focus more on content and strategy and then how to revise them. So similarly, this video particularly will be on the same thing. You will be more focusing on content. So this is a third video, third series. So those are new to it can watch my last two videos. They can go to my playlist and see the modern history MCQs. Okay, let's move. So the first question is consider the following statements. Mahatma Gandhi was the only Hindu leader present at the All India Khilafat conference held in 1919. Okay, so this is an extreme sentence. Mahatma Gandhi was the only Hindu leader. So they are particularly mentioning the word only. The second statement, the Khilafat leaders were more concerned with the fate of the Khalifa in the Middle East than uniting Muslims in India. So statements are confusing. Okay, if you look at from the content point of view, the statements are confusing. First of all, the question is only Hindu leader. So now this is a statement which looks extreme, but it is a correct statement. He was the only Hindu leader in that particular conference held in 1919. He was the only Hindu leader. Okay. Second statement, the Khilafat leaders were more concerned with the fate of Khalifa in the Middle East than uniting Muslims in India. This statement looks relatable. They were more concerned about their Khalifa because that was their main motto, right? Than uniting Muslims in India. But this statement is actually wrong. They were more concerned about uniting Muslims in India. They were concerned about the fate of Khalifa, no doubt on that. But here the keyword, the trick is more. They were more concerned with the fate of Khalifa. No, they were not. They were more concerned about uniting Muslims in India. They were also concerned about the fate of Khalifa. But here the statement is more, it is given more. So the statement is wrong. So the answer is only one. So these kind of questions are like they're designed according to prelims because prelims exam is it's an application oriented exam. The statements will not directly come from books like Spectrum, as I always say. So you have to know the in-depth events which really happened and what was their any kind of organization. If you see what was their motive behind it, why they did it, all those things you need to know from exam point of view. Okay, so here the answer is only one. Okay. So in the explanation, I have written the same thing. Khilafat leaders were not particularly concerned with the fate of Khalifa in Middle East. For them, Khilafat was a symbol that united Muslims in India. Like uniting of Muslims in India, well, Khilafat leaders, we were talking about the Khilafat leaders in India. They were more concerned about uniting Muslims. They are not in particular concerned with the fate of Khalifa. They were concerned, but in this particular statement I am writing in because I'm comparing two things. They were more concerned about the symbol. They're more because Khilafat was a symbol that united Muslims in India. So they are more concerned about that. Okay. Second question. The Order of the Rising Sun. The Order of the Rising Sun was honored upon which of the following personalities by the Japanese government? So this Order of the Rising Sun ये एक दिया जाता है एक ऑनर दिया जाता है जापान गवर्नमेंट की तरफ से किसको दिया गया था उस टाइम से इन पर्टिकुलर 1942-43 के टाइम पे जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था एक जगह एक टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था उसी टाइम आईएनए भी काफी उस टाइम पे फेमस थी लाइक दे वर डूइंग देयर ओन वर्क सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन रास बिहारी घोष रास बिहारी बोस देन यू हैव सुभाष चंद्र बोस मोहन सिंह सो यहाँ पे अगर देखोगे सुभाष चंद्र बोस आईएनए मोहन सिंह आईएनए रास बिहारी बोस ही वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन आईएनए Ras Bihari Ghosh you can eliminate. Why? Because Ras Bihari Ghosh was a मॉडरेट ही वॉज ए मॉडरेट उनका रोल 1908 तक था 1907 सूरत स्प्लिट जब हुआ था ही वॉज द प्रेसिडेंट राइट ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी सेशन एट सूरत इवन 1908 में भी वो प्रेसिडेंट थे कौन रास बिहारी घोष वी आर टॉकिंग अबाउट घोष सो दिस ऑप्शन यू कैन वेरी इजीली एलिमिनेट वो मॉडरेट थे तो वी कैन एलिमिनेट नाउ द थिंग इज रास बिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस एंड मोहन सिंह द
करेक्ट आंसर इज रास बिहारी बोस को मिला था ये पर्सनालिटी बिकॉज ऑफ हिज वर्क. So here the answer is Ras Bihari Bose. So Subhash Chandra Bose and Mohan Singh can like they are put. I have put in this option just to confuse. Okay. ठीक है. Let me erase it. Okay. So here the answer is Ras Bihari Bose. Next question. Which of the following personalities of modern India wrote the famous children literature of 1896, that is Khirer Putul? Now this Khirer Putul, आजकल जो questions आ रहे, if you see देसर कथा एक question आ गया था, it was completely in depth. If you read only advanced books, then only you will find this stuff. Normal books में ये सब चीज मिलेगा नहीं. Now this Khirer Putul जो है ये book में लिखा है. It is mentioned in two books, that is one is Shekhar Bandyopadhyay and another book is Banerjee Dubey. ये दो बुक में ये मेंशन्ड है. ठीक है. सो कौन से खिरेर पुतुल नाम से लग जाता है कि ठीक है बंगाली है, तो उसी टाइम के आसपास होगा 1896 जो स्वदेशी उसके बाद चला, तो ये काफी फेमस हुआ था. सो दिस आंसर इज डायरेक्टली यू कैन सी चारों के चारों नाम आर रिलेटेड टू इन पर्टिकुलर बंगाल. आप देखोगे टैगोर है, राजा रवि वर्मा है, नंदलाल बोस है. राजा रवि वर्मा वाज अ पेंटर, नंदलाल बोस ही वाज आल्सो ए पेंटर, अवनींद्र टैगोर. सो ये जो पर्टिकुलर फेमस जो खिरेर पुतुल करके जो था जो चिल्ड्रन लिटरेचर था, ये लिखे थे आपका अवनींद्र नाथ टैगोर. यू हैव टू रिमेंबर अवनींद्र नाथ टैगोर इसका दिस पर्टिकुलर चीज को लिखे थे. ओके. So it's Abanindranath Tagore who wrote Khirer Putul. 1896, रिमेंबर 1896. तो उसके बाद जब 1905 में स्वदेशी मूवमेंट वगैरह चल रहा था, ये काफी फेमस हुआ था उस टाइम पे. नेक्स्ट क्वेश्चन. गांधी जी हेल्ड to which of the famous personality as keeper of his conscience? Keeper of his conscience, very important stuff. This you need to know. The direct answer I'll tell you because it's a direct question. It is C. Rajgopalachari. गोखले नहीं है, नेहरू नहीं है. नेहरू लगता है कीपर ऑफ हिज कॉन्फ्रेंस, क्योंकि नेहरू के साथ गांधी जी का काफी पूरा का पूरा जो जर्नी था इंडिपेंडेंस का उन्हीं के साथ ही हुआ है. सो मोस्टली पीपल मे थिंक इट इज नेहरू. नो, नेहरू नहीं है. अंबेडकर भी हो सकता है. somebody कैन ऑल्सो टेक कि हाँ ऑपरिस्ट क्लासेस में थोड़ा बहुत काम किए थे, दलित मूवमेंट में किए थे, तो वो भी नहीं. इट्स सी राजगोपालाचारी को बोले थे. सी राजगोपालाचारी के बारे में मैंने और एक वीडियो करूंगा जो कि इन पर्टिकुलर उनके बारे में होगा. मैं काफी दिन बाद में एक और से सीरीज शुरू करूंगा, पर्सनालिटी सीरीज. तो उसमें मैं सी राजगोपालाचारी के बारे में पूरा का पूरा एवरी स्टार्टिंग फ्रॉम एंड टिल इंडिपेंडेंस तक उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था वो मैं कवर करूंगा. Okay, next question is which of the following newspaper, journals, articles are not associated? So here not associated with Mahatma Gandhi. Not. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडियन ओपिनियन था एसोसिएटेड, यंग इंडिया भी उन्होंने किया था. नन एक तो वेजिटेरियन. तो प्रॉब्लम यहाँ पे होगा द वेजिटेरियन क्या है, क्योंकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि वेजिटेरियन क्या है. सी वेजिटेरियन एक पेपर था जो कि 1891 में साउथ अफ्रीका में इंडिपेंडेंटली ये एक न्यूज़पेपर आता था और या फिर आर्टिकल्स वगैरह आता था. तो गांधी जी ने इसी वेजिटेरियन के लिए आर्टिकल्स लिखते थे, खुद नहीं लिखते थे, उसी के लिए लिखते थे. एक इंडिपेंडेंट था साउथ अफ्रीका में. सो इससे जाहिर सी बात है, इससे ये पता चल जाता है कि वेजिटेरियन वाज एसोसिएटेड विद गांधी जी. सो इसका आंसर होगा नॉन. तीनों के तीनों एसोसिएटेड था. हमेशा क्वेश्चन में अगर आप देखोगे यूपीएससी के क्वेश्चन में दो ऐसे ऑप्शन रहेंगे जो कि कॉमन रहेंगे, एक ऑप्शन रहेगा जो कि कॉमन नहीं रहेगा, सो दैट एस्पिरेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाए उसको अटेंड करने के लिए. क्योंकि दो ऐसे ऑप्शन देखेंगे जो कि उनको लगेगा हाँ ये तो पता है, तो दे विल गो विथ ए, वेजिटेरियन तो हमने सुना नहीं है. तो वहां से आप अटेंड करोगे और गलती हो जाएगी, और वो ही यूपीएससी क्वेश्चन मेकर्स चाहते हैं कि आपकी गलती हो. ओके, सो हियर द आंसर इज नन, ऑल आर एसोसिएटेड.
So in February 1981, Gandhiji started writing articles for the Vegetarian. It was a weekly newspaper. It was an independent newspaper. ठीक है, वहाँ पे साउथ अफ्रीका में होता था. तो साउथ अफ्रीका में उन्हीं के लिए, वेजिटेरियन के लिए गांधी जी लिखना शुरू किए थे. वेरी अर्ली टाइम की बात हो रही है, बिकॉज 1981 की बात हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज रिप्रेजेंटेड द बॉम्बे गवर्नमेंट एट द शिमला इरिगेशन कमीशन ऑफ 1904. तो 1904 में एक शिमला इरिगेशन कमीशन हुआ, बिठाई गई थी, जहां पे इरिगेशन रिलेटेड बात किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था इसको. तो कौन से इंडियन इनमें से रिप्रेजेंट किए थे इस पर्टिकुलर शिमला इरिगेशन ऑर्गेनाइजेशन को, सॉरी शिमला इरिगेशन कमीशन को? तो एक बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, एमजी रानाडे, जीके गोखले, नन. सो दीज थ्री नेम्स आर क्वाइट कॉमन, ठीक है, और हमने इनके बारे में काफी कुछ बुक्स में पढ़े भी हैं. तो शिमला इरिगेशन कमीशन के बारे में हमने ज्यादा कुछ सुना नहीं है. नॉर्मल बुक्स की बात करें, सुना नहीं है मतलब हमने नॉर्मल बुक्स जो कि स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटीज होते हैं, वहां पे तो हमने सुना नहीं है. लेकिन 1904 में काफी बड़ी चीज हुई थी. आंसर इसका नन है. दीज थ्री आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू शिमला इरिगेशन कमीशन. उन्होंने बॉम्बे गवर्नमेंट, और बॉम्बे है तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल गो विद बाल गंगाधर तिलक. 1904 है तो बाल गंगाधर तिलक काफी फेमस थे उस टाइम पे, बॉम्बे भी दिया है, तो शायद वो लिंक करके जानबूझ के मैंने डाला है ताकि पीपल गेट कंफ्यूज्ड. हाँ, तिलक हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है. आंसर तीनों के तीनों नहीं है. द आंसर इज एम विश्वेश्वरैया. इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एम विश्वेश्वरैया. तो एम विश्वेश्वरैया जो है, he was he was appointed or he represented the Bombay government in the Shimla Irrigation Commission. अब यहाँ पे एम विश्वेश्वरैया जो पर्सनालिटी, ही वाज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी. इनके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक सिविल इंजीनियर थे. he was a civil engineer. he was the 19th Diwan of Mysore. 19th Diwan of Mysore. टाइम जानना बहुत जरूरी है, कौन से टाइम पे वो ज्यादा पॉपुलर थे. दीवान जो थे 1912 से लेके 1919 तक, ही वाज द दीवान ऑफ मैसूर. इनकी जो बर्थडे है, इट इज सेलिब्रेटेड एज इंजीनियर्स डे. वेरी फेमस. इंजीनियर्स डे में हम उनको सेलिब्रेट करते हैं. इंजीनियर्स डे, अगर पूछा जाएगा कि इंजीनियर्स डे कहाँ पे सेलिब्रेट हो, क्या सिर्फ इंडिया में होता है? इंडिया में तो होता है, श्रीलंका में भी होता है. क्या सिर्फ इंडिया और श्रीलंका में होता है? तांजानिया में भी होता है. ये इतना फेमस थे. तांजानिया में भी होता है. ओके, और कुछ इंफॉर्मेशन है विश्वेश्वरैया के बारे में. ही वाज द चीफ इंजीनियर. एक डैम है, वेरी फेमस डैम, कृष्णा राजा सागर डैम, मैसूर में. तो ही वाज द चीफ इंजीनियर. काफी फेमस हुए थे इस डैम के वजह से, आज तक भी हम याद करते हैं इनको. और क्या इंफॉर्मेशन, ये तो हो गया मैसूर रिलेटेड. एक डैम है जिसका नाम है हीराकुद डैम, वेरी फेमस डैम इन उड़ीसा. हीराकुद डैम जो कि 1957 के आसपास बनी थी उड़ीसा में. सो हीराकुद डैम का भी इंजीनियर थे. ही वाज द इंजीनियर ऑफ हीराकुद डैम ऑल्सो. और क्या किया थे जिनके लिए वो सेलिब्रिटी स्टेटस उनको मिला था? he also designed a flood protection system. किसके लिए? फॉर हैदराबाद सिटी. के लिए एक फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम किए थे, जिसके लिए वो सेलिब्रिटी स्टेटस उनको मिल गया, काफी फेमस बन गए. ठीक है, और क्या किए हैं? और उन्होंने एक चीज की थी, he was instrumental in developing a system to protect विशाखापट्टनम पोर्ट फ्रॉम सी इरोजन से बचाने के लिए, विशाखापट्टनम पोर्ट को बचाने के लिए सी इरोजन से उन्होंने एक सिस्टम बनाया था. वेरी फेमस फॉर दिस.
तो एट द एज ऑफ 90 years, व्हेन ही वाज 90 years old, उनको बोला गया था द फादर ऑफ मैसूर स्टेट, द फादर ऑफ मैसूर स्टेट। तो कुछ इन्फॉर्मेशन यू हैव टू रिमेंबर। तो ही वाज द फादर ऑफ मैसूर स्टेट, विशाखापट्टनम पोर्ट, इंडिया, श्रीलंका, तंजानिया में उनकी बर्थडे सेलिब्रेट होती है, कृष्णाराज सागर डैम, हैदराबाद सिटी में फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम, हीराकुद 1957 नाम का इंजीनियर थे, इनको भारत रत्न भी मिला था 1955 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 1955 में उनको भारत रत्न भी मिला था। तो दीज इंफॉर्मेशन यू कैन जस्ट नोट डाउन इन योर कॉपी, क्योंकि कभी भी कोई भी एग्जाम, स्टेट एग्जाम्स हो या फिर मेंस हो, मेंस में ऐड कर सकते हैं, सब वैल्यू एडिशन होती है सब चीज। ओके, सो आई एम रबिंग इट। So some information थोड़ा बहुत आपको बुक से बाहर जानी पड़ती है, बिकॉज द एग्जाम हैज बिकम वेरी कम्पिटिटिव नाउअडेज। अगर आप देखोगे कट ऑफ 50% भी नहीं जा रहा है प्रीलिम्स में, तो थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा जानोगे तो दूसरों से थोड़ा एक्स्ट्रा एज मिलेगा। वही मोटिव है कि थोड़ा दूसरों से एज मिलता है तो आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The Rajkot Satyagraha in the first half of the 20th century is related to which of the following? Rajkot Satyagraha. So this is a very important static topic. क्या ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का है, क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का है, क्या नो टैक्स कैंपेन है, या प्रजामंडल मूवमेंट है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नो टैक्स मूवमेंट, प्रजामंडल। फर्स्ट ऑफ ऑल, राजकोट सत्याग्रह इज रिलेटेड टू प्रजामंडल मूवमेंट्स। प्रजामंडल मूवमेंट्स मतलब क्या? प्रजामंडल मूवमेंट्स मतलब इट इज ए टॉपिक, इट इज ए मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक। किसका टॉपिक का नाम है? प्रजामंडल। प्रजामंडल मतलब क्या है? प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स का मॉडर्न हिस्ट्री में क्या रोल था, ये एक टॉपिक है, क्योंकि मैंने क्लास में भी कराया है। इट्स ए टॉपिक। प्रिंसली स्टेट्स का एग्जैक्टली क्या रोल था, 1920s में क्या था, 1930s में क्या था, फिर एंड में 1936 से काफी इनका रोल बढ़ गया, फिर फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या था, ये सब चीज आपको उसी टॉपिक में मिलेगा। यहाँ पे टाइम नहीं है बोलने के लिए, लेकिन एटलीस्ट समझ लो कि ये प्रिंसली स्टेट्स एक टॉपिक है, क्योंकि मैं आगे एक, अगर टाइम मिला तो मैं एक वीडियो बना दूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर वेरी like it has not been covered nicely in normal books, in basic books I'm talking, but they are important from exam point of view. राजकोट सत्याग्रह is a very potential question for mains के बारे में भी आ सकता है, जो मैंने क्लास में भी कराया था। ओके, सो ये द राजकोट सत्याग्रह ऑफ 1939 इज अ पार्ट ऑफ द प्रजामंडल मूवमेंट्स, प्रिंसली स्टेट मूवमेंट्स। प्रिंसली स्टेट में जो, जहाँ पे ब्रिटिश के अंदर एक प्रिंस था और वो डायरेक्ट कंट्रोल करते थे, तो कहीं ना कहीं प्रिंसली स्टेट्स पूरा का पूरा ब्रिटिश के अंडर में था। फेबर प्रिंस, वो प्रिंस ब्रिटिश का ही आदमी था। तो लेकिन उनका जो लोग थे, जो प्रिंसली स्टेट में जो पीपल थे, जो लोग थे, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आया कि हाँ, हमको भी इंडिपेंडेंस करने की जरूरत है, हमको भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जाना जरूरी है। तो उन्होंने 19, खास करके थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, उन्होंने 1920 में थोड़ा बहुत आईएनसी ने उनको रिकॉग्नाइज किया, हल्का सा। मैं बस एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। फिर अपने उन्होंने अपना एक यूनियन वगैरह बनाया, ग्रुप बनाया, नाम मैं बता दूंगा, ग्रुप बनाया। तो आहिस्ता आहिस्ता बनते बनते फाइनली 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935, उसके बाद उनके लोगों को, जो प्रिंसली स्टेट्स के लोग थे, उनको पता चला कि वी नाउ नीड टू कम टू द फोरफ्रंट एंड पार्टिसिपेट इन आवर इंडिपेंडेंस मूवमेंट। प्रिंस, उनका जो प्रिंस था वो सपोर्ट नहीं करता था, वो ब्रिटिश को सपोर्ट करता था, लेकिन लोग कहीं ना कहीं पता चल गया लोगों को कि नहीं, वी शुड पार्टिसिपेट। तो बहुत सारे सत्याग्रह हुए, तो उनमें से एक है राजकोट सत्याग्रह। और फाइनली उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया। सक्सेसफुल इतना नहीं हुआ उनका, लेकिन उन्होंने शुरुआत कर दिया। ठीक है, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट से, जैसे कि एक राजकोट हो गया, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, बहुत सारे हैं, कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया, बहुत सारे हैं। ओके, तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैं कवर करा दूंगा कभी मुझे टाइम मिले तो। इंडिविजुअल टॉपिक्स का जो मेरा है उसमें मैं करा दूंगा। ओके, नेक्स्ट। ओके, now this question is very tricky. Consider the following association: depressed classes federation,
डिप्रेस्ड क्लासेस लीग, डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन, तो इनमें से कौन सा बी आर अम्बेडकर के साथ एसोसिएटेड है? बी आर अम्बेडकर के साथ कौन सा एसोसिएटेड है? देखिए एक बार तो ये फैक्चुअल है, आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो आप कर नहीं सकते ये आंसर। सो डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन, पहला वाला डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन आपका हुआ था 1930 में बाई बी आर अम्बेडकर, तो ये तो सही है। डिप्रेस्ड क्लासेस लीग जो हुआ था ये हुआ था 1935 में, बट ये बी आर अम्बेडकर का नहीं है, ये जगजीवन राम का है, जगजीवन राम उनका है। सब डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए काम किए हैं, तो वो बड़ी बात नहीं है, किसने किया है वो बड़ी बात है, और ईयर जानना जरूरी है। नाउ डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन क्या है? इट कैन बी वेरी इजीली ट्रैप कर सकते हैं। डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन तो बहुत उससे भी पुराना है, ये हुआ था 1906 में। एंड पर्सनालिटी ऑल्सो आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन एक नाम है जिनका नाम है महर्षि विठल रामजी शिंदे, ये भी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए काम किए थे। तो थोड़ा ये पर्सनालिटी का नाम भी जान लोगे, अगर भी कोई भी अलग क्वेश्चन आ गया जहां पे ये ऑप्शन हो, आपको वहीं पे ही आपको वो हेल्प करेगा एलिमिनेट करने में। आपने यहाँ पे पढ़ा होगा नहीं, महर्षि विठल राम जी शिंदे तो इन्हीं का है, तो इट विल हेल्प यू इन एलिमिनेशन, तो वो सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ओनली है सिर्फ डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन इज रिलेटेड टू अम्बेडकर। ओके, तो थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि जरूरी है आपके बुक से बियॉन्ड जाना। तो ये जो प्रोग्राम है उसी को ही मेन कैटर करता है, ये सीरीज जो है उन्हीं के लिए है जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है और वो जो आगे ज्यादा सीखना चाहते हैं, उन्हीं के लिए नहीं है ये सीरीज, जो कि आगे पढ़ना ही नहीं चाहते उनके लिए ये सीरीज बिल्कुल नहीं है। ओके नेक्स्ट, वही चीज लिखा है और एक बार। ओके ओके, which of the following personalities are not associated with servants of people society? नॉट एसोसिएटेड पूछा गया है, ध्यान से, नॉट एसोसिएटेड विद सर्वेंट्स ऑफ पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी किसने किया है? सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी 1921 में हुआ था, लाला लाजपत राय ने किया था, राइट? ये तो हमको पता है, ये कहाँ पे किया था वो भी जानना जरूरी है, लाहौर में किया था। ओके 1921 में अगर हुआ था तो जाहिर सी बात है तिलक तो हो नहीं सकते, क्योंकि तिलक की डेथ तो 1920 में ही हो गई। ठीक है, खत्म, आंसर वहीं से मिल गया, नॉट एसोसिएटेड, तो तिलक है आंसर, बिकॉज नॉट दिया है, बाकी तीनों के तीनों एसोसिएटेड। दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड, तो यहां से आपको सही आंसर जानने के बाद भी थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। पुरुषोत्तम दास टंडन, बलवंत राय मेहता, जो मेहता कमिटी हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, ये सब के सब सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी के साथ एसोसिएटेड है। लाल बहादुर शास्त्री तो पूरा अपनी जिंदगी भर इसके साथ एसोसिएटेड थे, आपको याद करना पड़ेगा। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, तो सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी हमने अगर पढ़ाई कर लिया तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी एक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसने किया था? तो इट वाज फॉर्म्ड इन 1921 इन लाहौर बाय लाला लाजपत राय। देखो तिलक डाइड इन 1920, लाल बहादुर शास्त्री वाज अ लाइफ लॉन्ग मेंबर, रिमेंबर लाइफ लॉन्ग मेंबर थे। और 1900 इसका जो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जीके गोखले ने किया था, रिमेंबर, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जीके गोखले। ये अगर लाहौर में हुआ है तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कहाँ पे हुआ था? पुणे में हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र में, रिमेंबर। तो थोड़ा डिफरेंस और वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्ड सिमिलर साउंडिंग है, तो इसलिए इसका क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ओके, उसको इरेज कर देते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी वाज इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी एट लाहौर। अच्छा, ये महात्मा गांधी को इस क्वेश्चन में मैं लिंक कर रहा हूँ। ओके, दिस सोसाइटी वाज इनिशियली स्टार्टेड विद द तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स इन 1921। ओके, नया चीज आ गया, तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स क्या है? अगर आप नहीं जानते तो आपको जानना पड़ेगा यहीं पे, तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स 1921 to train those who would serve in political field. थर्ड स्टेटमेंट, दिस सोसाइटी स्टिल एग्जिस्ट इन दिल्ली। देखो जानना पड़ेगा, ये स्टिल एग्जिस्ट करता है, करेक्ट है।
पहला सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, आप देखोगे पीपल सोसाइटी हमने कितना पढ़ा है, 1921 में हुआ था, लाला लाजपत राय ने किया था, लाहौर में किया, लेकिन वहां पे गांधी जी थे, एग्जैक्टली गांधी जी थे वहां पे, इनॉग्रेट भी किया था। तो 1 and 3 आर करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, दिस सोसाइटी इज इनिशियली स्टार्टेड तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स, एग्जैक्टली देखो तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स जो है ये 1921 में फॉर्म हुआ था, लेकिन ये तिलक के द्वारा नहीं हुआ था, तिलक तो डेथ हो गया था उनका 1920 में, ये लाला लाजपत राय ने ही किया था। और इसी बॉडी से सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी बना, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी इसी बॉडी से ही बना है। ओके, तो इसका आंसर तीनों के तीनों है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि महात्मा गांधी ने ही इसको इनॉग्रेट किया था। थोड़ा इनडेप्थ इंफॉर्मेशन, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत काम आ जाएगा ये सब चीज। ओके, तो ये थोड़ा ट्रिकी था, मैं जानबूझ के इसको गांधी जी के साथ लिंक किया और जानबूझ के तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के साथ भी लिंक किया। ओके, तो यही था, थोड़ा ट्रिकी वे में मैंने किया था। सो वी आर डन विथ इट, दिस इज आवर टेस्ट सीरीज। आप जा सकते हैं मेरे वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन पुट किया है, सब सब्जेक्ट का कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है। एंड दिस इज माय वेबसाइट। आप अगर क्लासेस लेना चाहते हैं आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा ऑनलाइन क्लासेस चलती है, जूम पे चलती है, mentoring, advanced test series, everything is available. You can just go to the link. If you want, you can contact me. Okay, okay, thank you.